everyone, Nivedita is here by taking a video on the topic classes of fungi. This is a topic for the students of class 11th biology. So in the previous video I have covered the topic uh, features of fungi, means what are the general properties of fungi. Now it's a classification of fungi kingdom into the different classes. So in this video we will study all the 4 classes. Okay, and one thing you can do, you can have the comparative study also. You can make out the 4 columns and can select the parameters on which they differ, and that way also this could help you in study. Okay, begin with the first class, Phycomycetes. One more thing, in the NCERT book this is a Phycomycetes, but other name for the same is uh, Zygomycetes. Okay, so Zygomycetes is also the other name for this. And these type of fungi, they are found in the aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places, or they exist as a obligate parasite on the plant. Okay, one important thing I'll just focus on every slide, mycelium. Okay, mycelium or hypha, I'll use the word. Okay, so you have to focus on this, ki how the mycelium in different classes they differ. Like in Phycomycetes, the mycelium is aseptate. Aseptate word means there is no dividing wall, there is no septa, so condition will be cynocytic. In the previous video also I have explained this. Cynocytic means multi-nucleate stage. Okay, so in Phycomycetes this is important to keep in mind. The mycelium is aseptate and cynocytic. Okay, now asexual reproduction in this group occurs by zoospores. Whenever word comes zoospores, so always one thing should come to mind, and that is motile spores. Okay, motile means which can move. Okay, motile means mobile spores. So these are the zoospores, and aplerospores, they are not the mobile one. Okay, they do not move at all. And in all this kingdom of fungi, if sexual reproduction occurs, so there are 3 ways. Okay, means the fusing gametes, there would be fusion of gametes. If so, gametes may be similar, may be dissimilar in morphology. Okay, if the similar gametes fuse, then this is called as the isogamous. And if the fusing gametes are dissimilar, so that is called as the anisogamous or oogamous. Again, there is difference between anisogamous or oogamous. What happens in oogamous? The female gamete is bigger and non-motile, whereas male gamete is smaller and it is motile. Okay, so these are the main features of Phycomycetes, and remaining fungi, whatever features they have, they are the similar one. So examples we have for Phycomycetes are Mucor and Rhizopus, Albugo, which is a parasite fungi. Uh, you can see this in this slide, you can see their sporangia are formed, and inside the sporangium their spores are formed. And what happens when the spore, that is sporangium, get burst, it releases the spores, and wherever the spores fall, they germinate and give rise to the mycelium. Okay, so this way the reproduction occurs. Now the second class is Ascomycetes. Asco, what is derived from the ascus? Okay, these Ascomycetes, this is also called as the sect fungi. Okay, here written unicellular or multicellular. So generally the fungi, they are the multicellular one, but one member, that is yeast. Yeast everyone knows, at home it is used. स्पोर्स उसके ईस्ट के पैकेट्स भी मिलते हैं मार्केट में, और हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए डोसा, इडली, वट एवर हम फर्मेंटेड फूड बनाते हैं उसमें ऐड किया जाता है. तो दैट ईस्ट आई एम टॉकिंग ऑफ, दैट इज द यूनिसेलुलर वन. सो Saccharomyces. Okay, so that comes to this class.
ओके, सो दीज आर द सेक फंजाई। ये सेक फंजाई है क्योंकि इसमें सेक बनता है, एक सेक बनता है, ओके, और उसके अंदर फिर स्पोर्स बनते हैं। ओके, इससे एक और बात क्लियर हो गई, जो स्पोर्स बनते हैं वो सेक के अंदर बनते हैं, उस सेक को कहते हैं एस्कस, ओके, और उसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उसको कहते हैं एस्कोस्पोर्स, राइट। अब वर्ड यूज हुआ एंडोजिनसली। एंडोजिनसली मीन्स स्पोर्स किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, विद इन द स्ट्रक्चर, सो इसीलिए इसको एंडोजिनस कहते हैं। पर यदि वो स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ ग्रो करते हैं तो उसको एक्सोजिनसली ग्रोइंग कहेंगे, या एक्सोजिनसली ग्रो करते हैं। तो यू विल फाइंड दिस इन द coming classes. Okay, this is also difference. So here the spores are formed endogenously. Okay, यहाँ पे देखो माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है। इसके प्रीवियस में जो फाइकोमासिटीज था वहाँ एसेप्टेट था। ओके, सेप्टेट मीन्स यहाँ पे सेप्टा डिवाइडिंग वॉल है, मतलब ये यूनिन्यूक्लिएट स्टेज होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ करता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, एंड द स्पोर्स आर कोनिडिया। अब ये वर्ड यूज हुआ कोनिडियोफोर्स। तो कोनिडियोफोर्स क्या है? कोनिडियोफोर्स वो स्टॉक है जिसके ऊपर कोनिडिया लगेंगे। ओके, सो यू विल सी इन द डायग्राम। So this is basically the and all this ascus. Okay, they are arranged in different types of fruiting bodies and they are called as fruiting body. ये भी याद रखने का है, ascocarp. Fruiting body is called as the ascocarp. Okay, so members for examples of this ascomycetes are aspergillus, yeast, claviceps, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है ये बेकरी में भी यूज होता है, बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ करता है। ओके, ये ईस्ट एंड दिस इज कोनिडिया। कोनिडिया यू कैन सी, क्योंकि जब हम कोनिडिया बोलते हैं तो यू शुड हैव अ पिक्चर इन योर माइंड कि कोनिडिया बोला तो क्या दिमाग में आना चाहिए। तो कोनिडियोफोर and bearing the conidia, and this is the yeast, unicellular one, and remaining fungus are multicellular. Okay, बेसिडियोमाइसिटीज, अगेन इसका नाम कैसे आया बेसिडियो? बिकॉज इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी इसमें एक आएगा, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बेसिडियो कार्प है, जिसमें बेसिडियम लगे होते हैं। ओके, सो इसी से इसका नाम पड़ा बेसिडियोमाइसिटीज। So the most common member of this class is mushroom. मशरूम सभी जानते हैं, ठीक है। तो मशरूम जो है वो इसी का मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज का। ओके, तो इनको ब्रैकेट फंजाई भी कहा जाता है। एंड जहाँ जहाँ आपने उसको एगेरिकस, मशरूम इज एगेरिकस, एगेरिकस को जहाँ जहाँ देखा होगा ग्रो करते उसी से समझ में आ जाएगा। दे आर ग्रोइंग इन द डैम and especially in those areas where this decomposition is going on, decaying is going on, वहाँ होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से हुआ करता है, एंड सेक्स ऑर्गन्स इस ग्रुप में, इस क्लास में एब्सेंट होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट दैट इज कैरिड आउट बाय प्लाज्मोगेमी। ओके, मीन्स फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। मीन्स यदि दो फंगस हैं, ओके, वो क्लोज आते हैं एंड दे जस्ट लाई ऑफ अपोजिट स्ट्रेन, वो पास आके जब उनमें कांटेक्ट होता है तो उनकी डिजॉल्विंग जो कांटेक्ट वॉल होती है वो डिजॉल्व हो जाया करती है। ओके, तो इस तरीके से दो सेल माइसीलियम की जो है वो फ्यूज हो जाया करती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम, एंड दिस गिव राइज टू बेसिडियम। ओके, और बाद में इसमें पहले तो साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है एंड देन उसमें न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कैरियोगेमी, एंड फिर मियोसिस होता है तो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स वो एक्सोजिनसली बनते हैं, मीन्स किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनते, वो बाहर बना करते हैं। ओके, सो यू हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एगेरिकस, दैट इज मशरूम। ओके, अब ये पक्सीनिया अस्टिलेगो, दे ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास। पक्सीनिया जो है वो रस्ट फंगस है। ये रस्ट फंगस मीन्स क्या होता है? रस्ट कॉज करता है, रस्ट डिजीज है, डिसऑर्डर है, ठीक है।
गेहूं में, वीट में पक्सीनिया अटैक करके कितना गेहूं एवरी ईयर जो है वो खराब हो जाता है। अस्टिलेगो जो होता है वो स्मट फंगस कहते हैं क्योंकि ये स्मट डिजीज को कॉज करता है। ओके, सो दीज आर द मेंबर्स। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स देख सकते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए हैं एक बेसिडियम के ऊपर। ओके, और दूसरी पिक्चर में मशरूम्स है। तो यहाँ देखा जा सकता है कि बेसिडियम कैसे बनते हैं और बेसिडियोस्पोर्स किस तरीके से लगा करते हैं। ओके, so this is the last class, fourth class of the किंगडम फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको आर्टिफिशियल ग्रुप भी माना जाता है। ओके, इस और इसका दूसरा नाम इसको भी जाना जाता है इम्परफेक्ट फंजाई की। अब ऐसा क्यों कि हम इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? एक्चुअली इसके अंदर वो सारे मेंबर्स रखे गए हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं देखा गया है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा हमें आर्टिफिशियल लगता है क्योंकि अलग अलग तरीके के फंगस जिनमें भी सेक्सुअल साइकिल नहीं होती उन सभी फंगस को इसमें रखा गया है। ठीक है, बट जब उनमें खोज ली जाती है, जब उनमें स्टडी हो जाती कि नहीं इस वाले मेंबर में या जो भी वो वट एवर मेंबर इज देयर एंड इफ दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्टडीड, उसमें देखा गया है, स्टडी कर लिया गया कि हाँ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब उसको इस क्लास से निकालकर इधर they are just placed in the ascomycetes or in the basidiomycetes. So overall हम ऐसा कह सकते हैं जिन भी फंगस में सेक्सुअल स्टेज को नहीं देखा गया है वो सारे इसमें हैं एंड बाद में उनको मूव कर दिया जाता है whenever it is discovered. Okay, here also mycelium is septate and branched and they may be saprophytes, parasites, बहुत सारे सब डिकेइंग उस पर ग्रो करते हैं एंड वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ Alternaria, Colletotrichum and Trichoderma. So I hope you can study all the classes of kingdom fungi at a time by understanding the different features of each class. Okay, तो बेटर होगा इसको कंपैरेटिव स्टडी करें एंड स्टडी एट अ टाइम करें, तो उससे जो है वो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली इट विल बी इन आवर माइंड। Thank you.